Students, how are you all? I hope you guys all are well. I'm your teacher, Mona, and today I'm going to discuss the nouns. And हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी नाउन्स को कर रहे थे और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक्सरसाइजेस भी की थी। हम लोगों ने प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब हम लोगों ने पढ़े हैं और उन पर बेस्ड एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो 3E तक जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी थी एंड आज हमको कंटिन्यू करना है 3F से। तो हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज lecture. So as you can see on the screen guys, today we have nouns and identify the kind of the nouns in the sentence given. So let's start our today's exercise. And before starting my lecture, I want to give you a brief introduction of the noun again. So as I told you in my previous lecture that a noun is the name of the person, place or thing, any kind of the idea, any kind of the feeling and any kind of the name called the noun. Okay, we have common noun, we have proper noun, we have collective noun, we have abstract noun. So proper noun is refers to a particular thing, particular place or particular person. And if we're talking about the common noun, it is refers to a common thing, common place or common person. Or when we talk about the collective noun, it refers to the group of the people, group of the place or group of the things. And if we talking about the abstract noun, so abstract noun physically cannot be existed, it cannot be touched, it cannot be felt, but yes, it can uh, exist. And abstract noun generally the like good, bad, proper, improper, this kind of the things like the abstract noun. We have material noun or concrete noun that can be felt, that can be touched, called the concrete noun. We have countable noun that the noun can be countable, called the countable noun, and that cannot be countable, called the uncountable noun. So we have this kind of the nouns and we have discussed this kind of the nouns already. So and we have done some exercise related to the noun also, and today we have another exercise. So let's start our today's exercise. So identify the kind of the nouns sentence given. Have you lost any weight? Okay, do you have a choice of question? Danny wants his freedom. Bob's punishment was very unfair. Did Justin have any knowledge of the test? We need to follow the rules of the safety. So we have 12 sentences in our exercise. So let's identify the noun. Have you lost any weight? So weight is the uncountable noun. Okay, because weight जो है वो मेजर किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता है, तो हम लोग weight को क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे. ठीक है. डू यू हैव अ चॉइस ऑफ क्वेश्चंस? क्वेश्चन इज द काउंटेबल नाउन. जेनी वांट्स हिज फ्रीडम. फ्रीडम कैसा नाउन होगा? फ्रीडम होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन. ओके, या फिर अनकाउंटेबल, या फिर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं, बिकॉज वो तो फ्रीडम है, उसको ना तो हम टच कर सकते हैं ना वो फिजिकल एग्जिस्ट होती है, बट या एग्जिस्ट होती है. ठीक है. बॉब्स पनिशमेंट. पनिशमेंट इज ऑल्सो द अनकाउंटेबल नाउन और वी कैन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डिड जस्टिन हैव एनी नॉलेज? एनी नॉलेज कैसा है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब आप यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि अगर अनकाउंटेबल है तो एब्स्ट्रैक्ट भी कैसे हो सकता है. भाई जो चीज अनकाउंटेबल है जरूरी तो नहीं कि वो एब्स्ट्रैक्ट हो या मटेरियल हो, कुछ ना कुछ तो होगी. या तो कॉन्क्रीट नाउन होगी, अनकाउंटेबल भी है तो या तो कॉन्क्रीट होगी या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट होगी. किसी ना किसी टाइप का तो वो नेचर रखेगी रखेगी. तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है तो साथ में वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है या कॉन्क्रीट भी हो सकती है. दिस इज द सिंपल रूल. ओके, वी नीड टू फॉलो द रूल्स ऑफ सेफ्टी. रूल्स कैसे होते हैं हमारे? रूल्स हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं. ठीक है, उनको काउंट किया जा सकता है. रूल्स ऑफ दी सेफ्टी. सेफ्टी की अगर बात करें
तो ये सेफ्टी क्या है हमारी, सेफ्टी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इज देयर एनी जॉब वैकेंसी, जॉब कैसा है आपका, काउंटेबल नाउन है। इट वॉज अ जॉय टू सी द गेम, गेम कैसा है आपका, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द थीफ, थीफ कैसा है आपका, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। या फिर द ओल्ड मैन शोज काइंडनेस, काइंडनेस कैसा है आपका, एब्स्ट्रक्ट नाउन है, एब्स्ट्रक्ट नाउन, बिकॉज ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होती बट एग्जिस्ट होती है। क्लीनलाइनेस कैसा है आपका, ये भी कैसा है आपका, एब्स्ट्रक्ट नाउन है ये। क्लीनलाइनेस एब्स्ट्रक्ट नाउन है। माय फादर वाज नेवर अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तो डार्कनेस कैसा है आपका, ये भी कौन सा हो जाएगा, एब्स्ट्रक्ट नाउन ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल वाली बात नहीं रहेगी, सिंपल दिख रहा है कि एब्स्ट्रक्ट नाउन है। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, पिक आउट द 12 nouns and name them, there should be at least one of each kind of the noun। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक पूरा पैसेज दिया गया है, उसमें से 12 nouns हमको क्या करने हैं, पिक करने हैं और उनका नेम देना है, उनको नेमिंग करनी है। और देयर शुड बी एटलीस्ट वन ऑफ ईच काइंड ऑफ द नाउन, मतलब जितने भी टाइप के हम लोगों ने नाउन्स पढ़े हैं उसमें से कम हर एक टाइप के एक नाउन का एक एग्जाम्पल हमको यहाँ से पिक करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे हम लोगों ने कितने टाइप के नाउन्स पढ़े हैं, उनमें से हर एक का एक एग्जाम्पल पिक करेंगे। जैसे कि आई, आई कैसा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन है। एक हो गया हमारा, आई वॉन्ट टू बी राइटर बिकॉज आई लव टू बी अलोन विथ माई थॉट्स, ठीक है। थॉट्स कैसा है आपका, ये आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि थॉट्स है भाई वो तो किसी को भी आ सकते हैं, है ना, कॉमन नाउन। माय फ्रेंड, ये भी कैसा है आपका, कॉमन नाउन। जूडी, जूडी आपका प्रॉपर नाउन है। वांट्स टू बी डॉक्टर, डॉक्टर कैसा है, कॉमन नाउन। आई अगेन प्रॉपर नाउन हो जाएगा। टोल्ड हर दैट आई कैन ऑलरेडी इमेजिन पाइल्स ऑफ द बुक्स, पाइल्स ऑफ द बुक्स कैसा नाउन है ये, कलेक्टिव नाउन, ओके। ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात कर रहा है ये, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। अराउंड मी, आई वुड लव टू राइट अबाउट गॉड्स लव, लव कैसा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रक्ट नाउन हो जाएगा। मोस्ट ऑफ माई राइटिंग्स वुड कंटेन डिटेल्स अबाउट हिज प्रोविजन, आई वुड रिक्वायर डजन्स ऑफ पेंसिल्स, ये भी कैसा हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एंड प्लेंटी ऑफ पेपर, पेपर कैसा है आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। सिटिंग ऑन हार्ड प्लास्टिक, प्लास्टिक अगेन आपका कॉमन नाउन हो गया, प्लास्टिक चेयर ऑल डे। वुड नॉट बॉदर मी बिकॉज माई फोकस वुड बी ऑन व्हाट आई वांटेड टू डू मोस्ट ऑफ ऑल। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स देखे, हम लोगों ने कॉमन नाउन के एग्जांपल देखे, हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स देखे। हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इनमें से 12 नाउन्स हम लोगों ने पिक किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो हम लोग देखेंगे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हार्ड प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक कॉमन नाउन है, ठीक है, प्लास्टिक कॉमन नाउन है। चेयर हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। ऑल डे, वुड नॉट बॉदर मी, ये कैसा नाउन है, मी पजेसिव, तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। माई फोकस वुड बी ऑन वॉट आई वॉन्टेड टू डू मोस्ट ऑफ ऑल, हम इसमें से और भी नाउन्स अपने छांट सकते हैं, देखते हैं हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं। राइटर, राइटर क्या है हमारा, ये भी कौन सा हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। बिकॉज आई लव टू बी अलोन विथ माई थॉट्स एंड माई फ्रेंड जूडी वॉन्ट्स टू बी डॉक्टर, आई टोल्ड हर दैट आई, ये अगेन आपका प्रॉपर नाउन होगा। कैन ऑलरेडी इमेजिन पाइल्स ऑफ द बुक्स अराउंड मी, आई वुड लव, लव कैसा हो जाएगा आपका, अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। God's love, most of my writings would contain details about his provision. I would require dozens of pencils and plenty of paper. अगर पेपर आपका प्रॉपर नाउन है पर plenty of papers क्या हो जाएगा आपका, ये भी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है, ये भी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। सिटिंग ऑन ए हार्ड प्लास्टिक चेयर all day would not bother me because of my focus would be on
व्हाट आई वांटेड टू डू मोस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने नाउन्स जो हैं वो पिक कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ स्पेस दिया हुआ है जिसमें आप लोग लिख सकते हैं कि आपने कौन कौन से नाउन्स जो हैं पिक किए हैं। ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स की बात करेंगे। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग जब भी बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं, हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन्स की जैसे भी हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि हमने बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वी यूज वर्ड्स सम some, much, a lot of, etc. This kind of the words usually we can use. There is still a lot of choose left. ये कैसा है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। I have some money. How much money you have? Okay. So ये जो आपके आते हैं एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है आप लोग समझ सकते हैं कि आपका नाउन जो है वो कैसा नाउन है। Sometimes we use an exact measurement like a pinch of, okay, a pinch of salt, a spoon of, a piece of, a slice of. तो इस टाइप के भी हम लोग नाउन्स यूज करते हैं। ये भी कैसे हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन है, बिकॉज अ पिंच ऑफ सॉल्ट को जो आप लोग जो है काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, वो तो एक पीस ऑफ केक है, पर उस पीस ऑफ केक को भी अलग अलग तरीके से काउंट नहीं कर सकते हो। अगर आप स्पून ऑफ शुगर ले रहे हो तो वो 1 स्पून शुगर है, बट शुगर 1 स्पून में कितनी शुगर है वो आप काउंट नहीं कर सकते हो, कि उसमें कितने वहां पे पार्टिकल्स हैं शुगर के, वो आप काउंट नहीं कर सकते। इसलिए ये सब कैसे हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। रीड द लिस्ट ऑफ द सम पार्टिटिव नाउन्स एंड द अनकाउंटेबल नाउन्स दैट गो विद देम। सो यहाँ पर अब हमारे पास कुछ और नाउन्स हैं, जैसे कि अ पैंग ऑफ हंगर, अ क्लाउड ऑफ स्मोक, ओके, अ पील ऑफ लाफ्टर, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। तो ये जो नाउन्स है ना, ये सब हमारे कैसे नाउन्स हैं, हमारे ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, या फिर इनको हम कलेक्टिव नाउन्स भी कह सकते हैं। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, या फिर अ लॉफ ऑफ ब्रेड, अ बार ऑफ चॉकलेट, अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट। तो इस टाइप के नाउन्स जो है हम लोग जनरली यूज करते हैं, और इस टाइप के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जब भी आप लोग नाउन्स को उठाओगे। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप वहां पर देखोगे। ठीक है, अ शॉल ऑफ फिश भी कहते हैं, एन आर्मी ऑफ एंट बोलते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप बोलते हैं। तो इस टाइप के आप लोग बहुत सारे नाउन्स देखोगे, तो जब आप लोग इनको पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे कि कितने टाइप के नाउन्स हमारे पास में होते हैं। ठीक है, राइट अ पोएम एंड यूज पार्टिटिव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, द स्टूडेंट कैन रीड देयर पोएम्स अलाउड इन द क्लास। तो ये तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इसमें आप लोग क्या करना है, एक पोएम लिखनी है और उसमें इस टाइप के नाउन्स को यूज करना है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर नाउन वाला चैप्टर जो है ये खत्म होता है। यहाँ पर आपका नाउन वाला चैप्टर फिनिश हो गया। तो नाउन्स जो है आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि नाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड नाउन्स के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत से अच्छे से बिल्डअप हो गई होगी, एंड अगर नहीं भी हुई है तो आप लोग चैप्टर को दोबारा से पढ़िए और आप वीडियो को सुनिए, आप लोगों को नाउन्स के साथ में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर्स के साथ में। तो नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नंबर्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी कि नंबर्स क्या होते हैं। तो आप लोगों ने नंबर्स पढ़े होंगे, मैथ्स में पढ़े होंगे आप लोगों ने नंबर्स, बहुत अच्छे से आप लोग उनसे फ्रेंडली होंगे नंबर्स के साथ में। बट यहाँ पर जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं नंबर्स की, तो इंग्लिश में नंबर्स कैसे हो सकते हैं आपके, जैसे कि कोई भी पर्सन या कोई भी नाउन सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है ना। तो जब सिंगुलर की हम बात करते हैं तो हम लोग क्या कर जनरली विदाउट एस या ई एस होते हैं, लेकिन उन्हीं नाउन्स को जब हम प्लूरल बनाना चाहें तो हम उसमें एस या ई एस जोड़कर जो है हम उनको प्लूरल कर सकते हैं। या फिर अगर कोई नाउन वाई के साथ में एंड हो रहा है तो वाई को हम रिप्लेस कर सकते हैं आई ई एस से। एंड अगर हम लोग कई बार क्या होता है, जैसे नाइफ है आपका, थीफ जो है, ठीक है, तो इसमें लास्ट कैसे हो रहा है, ये एफ के साथ में एंड हो रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली वी ई एस से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और कई बार हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्पेलिंग्स को टोटली चेंज करते हैं। तो इस टाइप से हम नाउन्स और प्रोनाउंस को क्या है आपका चेंज करते जाते हैं सिंगुलर टू प्लूरल में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। जैसे कि आपको कप बोर्ड दिया हुआ है, तो कप बोर्ड क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको हम प्लूरल करें तो इसमें हम लोगों ने जनरली एस को ऐड कर दिया।
पेन को अगर हम लोग करेंगे तो पेन्स हो गया, बाय चेंजिंग बाय इनटू आईईएस हो गया, पोनी को अब पोनीज कर सकते हैं, फेरी को फेरीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है जनरली अलग अलग टाइप से हम लोग नाउन्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा साथ में क्या है, कई बार हम लोग क्या करते हैं आपका, जैसे कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि वाई के साथ में एंड होते हैं, पर उसमें आईईएस लगाने की जरूरत नहीं होती है, हम उसमें सिंपली एस को ऐड करके भी प्लूरल कर सकते हैं। तो यही मैं चीज एक बार 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 आपको बोलती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर रूल के साथ में स्टिक मत हो जाइए। रूल्स अच्छे होते हैं, रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, कीप रिमेंबर द रूल्स, बट स्टिक मत हो जाइए, क्योंकि रूल्स जो हैं वो टाइम टाइम पर चेंज भी होते हैं। और इंग्लिश ग्रामर की बात करें, लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, तो लैंग्वेज जो है वो डायनेमिक होती है, और टाइम टू टाइम लैंग्वेज के रूल्स भी जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रूल के साथ स्टिक मत हो जाइए, बस उनको अपने दिमाग में रखिए, याद रखिए, और आप लोग जो है इजीली कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है हमारे पास में, एफ और ई एफ को हम लोग बी ई एस से चेंज करते हैं, जैसे कि काफ बताया था, काफ्स हो गया, थीफ, नाइफ, ये सब हमने अभी एग्जांपल दिखाए थे आपको। तो इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। और क्या है आपका, जैसे कि कुछ नाउन एस के साथ में, एस एच के साथ में ऐड होते हैं, तो उनको भी हम सिंपली ई एस जो है वो ऐड करके हम लोग उसको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये जो प्लूरल्स बन जाएंगे। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें हमें मीनिंग चेंज करनी होती है, स्पेलिंग चेंज करनी होती है, जैसे कि मैन की मैन होती है, लाउस की लाइस होती है, माउस की माइस हो जाती है, वुमन की वुमन हो जाती है। तो इस टाइप से बहुत सारे ऐसे नाउन्स आएंगे आपके, जिसमें आपको प्लूरल बनाने के लिए उनकी स्पेलिंग चेंज करनी होगी। ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे कि उनमें ई एन और आर ई एन लगाकर उनको प्लूरल बनाया जा सकता है, जैसे कि ब्रदर का ब्रदर हो जाता है, चिल्ड्रन का चिल्ड्रन हो जाता है। तो इस टाइप से हम लोग नाउन्स को जो है सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर सकते हैं। और कुछ चीज ऐसी भी होती हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है एक जैसा होता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि देखने में तो आपको कैसे लगेंगे कि जैसे ये प्लूरल है, बट वो सिंगुलर फॉर्म ही होते हैं। जैसे कि सीजर्स की अगर हम बात करें, तो सीजर्स हो गया, पेंट्स हो गया, तो इनके टू पेयर हमेशा साथ में यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, इनको हमेशा प्लूरल नाउन से इसका यूज किया जाता है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है। सम नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी रूल्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एज इट इज होते हैं, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म एक जैसा होता है। कुछ नाउन हमेशा कैसे लगते हैं, प्लूरल फॉर्म जैसे लगते हैं। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो कि प्लूरल लगेंगे बट वो सिंगुलर होंगे, जैसे कि अगर हम न्यूज की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, स्पेक्टिकल्स की बात करते हैं, तो ये आपको एस का यूज इनमें साथ में हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल है, बट वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर ही है। और उनका प्लूरल भी आपका वैसा ही होता है, एज इट इज होता है, उसमें अलग से ऐसे आई एस हम लोग ऐड नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मली फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस टू द लास्ट वर्ड कंपाउंड वर्ड्स, अ बुक केस, टू बुक केसेस, अ गेमिंग कंसोल, थ्री गेमिंग कंसोल्स। तो इस टाइप के आपके कुछ कंपाउंड नाउन्स भी होते हैं। सन इन लॉ होता है, सन्स इन लॉ होता है, पासर्स बाय हो जाता है, अब पासर्स बाय। तो इस टाइप के भी कुछ नाउन्स होते हैं, मदर इन लॉज होता है। ठीक है। तो इनको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए इनमें एस ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि 2 डजन एग्स हो गया। ठीक है। तो डजन्स में कभी डजन्स कभी भी नहीं होता, मिलियंस नहीं होता। 2 डजन एग्स, 10 मिलियन पीपल। ओके। तो इस टाइप से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें डजन को प्लूरल बनाना है तो 2 डजन एग कहेंगे, या 10 मिलियंस पीपल हम लोग यहाँ पर कहेंगे इसको। ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ पेबल्स, डजन्स ऑफ चिल्ड्रन वे आर प्लेइंग इन दी पार्क। तो इस तरीके से हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको साथ में इनमें देखना है कि भाई आपके कौन से नाउन जो है प्लूरल हम लोगों ने सही बनाया है और कौन सा प्लूरल जो है वो रॉन्ग है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे कि टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्लूरल फॉर द गिवन नाउन्स। फैमिली, फैमिली का क्या होता है प्लूरल, फैमिलीज होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ये रॉन्ग है, ये नहीं होता। फोटो का क्या हो जाता है आपका, फोटोज हो जाता है, ये वाला सही होगा। ठीक है। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। लीफ का क्या होता है, लीव्स होता है, ये तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। ये दोनों रॉन्ग है।
जू का क्या हो जाता है आपका? जूज। ठीक है, ये वाला करेक्ट होगा। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। और क्या होगा? ब्रेड का क्या होगा? ब्रेड्स हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। न्यूज, न्यूज का क्या रहता है आपका? न्यूज ही रहता है। ठीक है, ये दोनों गलत। पियानो का क्या हो जाता है आपका? पियानोज हो जाता है। ये रॉन्ग हो जाएगा। बिजनेस का क्या होता है आपका? बिजनेसेस, ये वाला सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। सीजर्स का क्या होता है आपका? सीजर्स ही होता है। ये दोनों आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग को क्या करना है, इसको करते जाना है। फूट का क्या होता है? फीट होता है। ठीक है, ये रॉन्ग। फिश का क्या होता है? फिशेज होता है। ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे आपके। एप्पल का क्या होता है? एप्पल्स होता है। ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको नाउन्स और प्रोनाउंस को सॉल्व करना है। नाउन्स नंबर्स को सॉल्व करना है, सिंगुलर टू प्लूरल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द नंबर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर अब हमें सेंटेंस को फिर से चेंज करना है और चेंजिंग द नंबर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। इट मीन्स आपको अगर टूथ दिया हुआ है तो इसका आपको प्लूरल बनाना है। टूथ का प्लूरल क्या होता है? टीथ हो जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका वैसे ही रहेगा। हॉर्सेस दिया है तो क्या हो जाएगा? हॉर्स हो जाएगा। सीजर्स आपका एज इट इज रहेगा। सीजर्स। द वुमन, वुमन का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो इसमें क्या होगा? इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ई लगेगा। ठीक है, लुकर ऑन का क्या हो जाएगा? लुकर्स ऑन। द फार्मर ड्रॉग हिज ऑक्स, ऑक्स का कितना हो जाता है आपका? ऑक्सन। पीच, जूसी पीच, जूसी पीचेस। लेटर, लेटर का क्या होता है आपका? लेटर्स। ठीक है, तो इस टाइप से आप चेंज करते जाना। ही लिफ्टेड द हैवी बॉक्सेस। माउस का क्या हो जाता है? माइस। ठीक है, और टेबल का क्या हो जाता है? टेबल्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने नाउन्स को सिंगुलर टू प्लूरल में जो है चेंज कर लिया। सिंपल। ठीक है, तो अब हमारा जो नाउन्स का जो नंबर्स वाला चैप्टर जो चल रहा था वो भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है? हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आ गया है, यहाँ पर जेंडर्स आ गया है। तो जैसे कि हम लोगों ने नाउन्स को पढ़ा, सिंगुलर प्लूरल्स को पढ़ा, वैसे ही हम जेंडर्स को भी पढ़ेंगे। बट वही स्टार्ट करने से पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। तो जेंडर्स जैसे कि आपको पता है, हमारे में जेंडर्स होते हैं, जैसे कि फीमेल जेंडर और मेल जेंडर हो गया। तो यहाँ पर जब जेंडर्स की हम बात करते हैं तो बहुत सारे जेंडर्स ऐसे होते हैं जो कि मेल जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर में बात करते हैं। बहुत सारे जेंडर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके किस में बात करते हैं? आपके फीमेल जेंडर में बात करते हैं, फेमिनाइन जेंडर में बात करते हैं। और आपकी जो नेचुरल थिंग्स जो होती हैं कुछ, उसमें भी जैसे स्पेस में भी जो थिंग होती है, सन को मस्कुलाइन जेंडर में काउंट किया जाता है, मून को आपका फेमिनाइन जेंडर में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं नेचुरली जिनको हम लोग फेमिनाइन जेंडर में काउंट करते हैं। बहुत सारी चीजें नेचुरली ऐसी होती हैं जिनको मस्कुलाइन जेंडर में काउंट करते हैं। और काफी नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जिनका कोई जेंडर नहीं होता है, उनका एक न्यूट्रल जेंडर होता है। दूसरी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कॉमन जेंडर होता है, जैसे कि आपका टीचर, डॉक्टर, पेरेंट्स, इनका एक कॉमन जेंडर होता है। इसमें हम लोग कोई भी जेंडर यूज मस्कुलाइन या फेमिनाइन यूज नहीं करते हैं। तो ये जेंडर्स होते हैं हमारे। और जेंडर्स में जब हम लोग किसी एक नाउन को हम लोग फीमेल मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं तो उसमें भी कुछ चेंजेस रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। अब वो रूल्स क्या हैं और कैसे वो चेंज होते हैं वो हम लोगों को आगे देखना है। तो आई होप आप लोगों को जो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, नाउन्स पढ़े हों या सिंगुलर प्लूरल्स पढ़े हों, वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग ये डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अब हम लोग जेंडर्स पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो जेंडर्स का जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया, उस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही हम लोग को जेंडर्स को पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर हम जेंडर्स की बात कर रहे हैं तो जेंडर्स जैसे कि बता रहे हैं कि 4 बेसिक काइंड्स ऑफ द जेंडर हमारे पास होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल बात की थी मस्कुलाइन जेंडर की। ओके, जैसे सन, बॉय, मैन, रूस्टर, ही, हिम, हिज, इस टाइप से हम लोग प्रोनाउंस भी यूज करते हैं। तो ये आपके मस्कुलाइन जेंडर होंगे। ठीक है,
फेमिनाइन जेंडर होते हैं आपके डॉटर, गर्ल, वुमन, हैन, बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके कॉमन जेंडर होते हैं जैसे कि हमने बात करी थी, पेरेंट्स हो गए, चाइल्ड हो गया, फ्रेंड हो गया, विजिटर, एनिमल्स, बहुत सारे जेंडर्स कॉमन जेंडर होते हैं। और कुछ जेंडर हमारे, जैसे कि हमने अभी बताया हुआ था कि न्यूट्रल जेंडर होते हैं, जैसे कि उसका कोई जेंडर नहीं होता है। सॉक्स हो गया, चॉकलेट, पेपर, क्रॉकरी, तो हर चीज का जेंडर हो ये जरूरी नहीं है। तो जिनका जेंडर नहीं होता है वो कैसे होते हैं आपके न्यूट्रल जेंडर होते हैं, उनको हम लोग न्यूट्रल जेंडर में इंक्लूड करते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर जो है कंफ्यूज मत होना कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बीच में। कॉमन जेंडर मतलब कि वहां पर फीमेल और मस्कुलाइन में हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन नहीं करेंगे। मतलब चाइल्ड अगर एक कोई बच्चा है, इन्फेंट अगर वो कोई बच्चा है, तो वो चाहे फीमेल हो या मेल हो, उसको चाइल्ड को चाइल्ड ही कहेंगे। फ्रेंड जो है मेल है या फीमेल हो, उसको फ्रेंड ही कहेंगे। कजिन जो है वो मेल या फिर फीमेल कुछ भी हो, कजिन कजिन ही होता है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका एक कॉमन जेंडर होता है, उनको हम मेल या फीमेल में सेपरेशन नहीं करते हैं, तो उनको कॉमन जेंडर कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जिनका कोई जेंडर नहीं होता है, तो जिनका कोई जेंडर नहीं है उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। तो ये 4 मेजर टाइप के आपके जेंडर्स जो हैं यहाँ पर हमारे पास में हैं। तो आई होप आप लोगों को जेंडर्स जो हैं अब तक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ हमारे पास जेंडर्स होते हैं जैसे कि मस्कुलाइन हो गया, पोएट, पोएटेस, बुल काफ, अर्ल का काउंटेस, लॉर्ड का लेडी, पैट्रन, पैट्रनेस, ईव, रैम, कॉल्ट का फिली, ड्यूक का डचेस। तो इस टाइप के जेंडर्स जो है आप लोग पढ़ सकते हो। हस्बैंड का जेंडर 5 वाइफ होता है, फॉक्स का विक्सन, हेयर का हेयरिस, बोर का सो, मैन का वुमन, जैक का इसका जेनियस, मॉक का नन, ड्रॉन बी, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस, किंग, क्वीन, वेटर, वेट्रेस, stag, hen, lion, lioness, rooster, priest, priestess, actor, actress, uncle, aunt, hunter, huntress, tiger, tigress, bachelor, spinster, wizard, witch। तो इस टाइप की कुछ लिस्ट हमको दी हुई है। और कुछ हमारे कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर हुए दिए हुए हैं। तो न्यूट्रल जेंडर में मोस्टली हमारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, कॉमन जेंडर्स में हमारे कॉमन पर्सन्स आ जाते हैं जैसे कि पीपल, फ्रेंड, लीडर, चिल्ड्रन, सर्वेंट, हेल्पर, पेरेंट्स, अटेंडेंट, कजिन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सर्जन, कुक, पेरेंट, एनिमल, बीस्ट, टीचर, डॉक्टर, लॉयर। तो किसी भी टाइप के जो प्रोफेशंस हैं वो भी किसमें आते हैं, आपके न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स, लैपटॉप, कुशन, कॉम, बैग, बॉटल, टेलीविजन, टेबल, मिक्सर, ये सब आपके न्यूट्रल जेंडर में आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये। ठीक है, तो इनको हम लोग न्यूट्रल जेंडर में काउंट करते हैं। तो आप लोगों को जेंडर्स जो है समझ में आ रहे होंगे, आई होप सो। एंड अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लोग बता सकते हैं। वैसे ये इतना सिंपल है आपको कि जेंडर्स जो है आपको भी अब तक क्लियर हो गए होंगे। जनरली जेंडर्स की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमको क्या लगता है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही जेंडर्स हैं, एक आपका मेल और फीमेल। तो ऐसा नहीं होता है, मेल और फीमेल तो एक 2 मेन जेंडर आपके हैं ही, बट इनके अलावा हमारी जैसे हमने बात करी कॉमन जेंडर होता है, हमारे पास में क्या होता है आपका न्यूट्रल जेंडर होता है। तो कॉमन जेंडर हम किसके लिए यूज करेंगे, न्यूट्रल जेंडर हम किसके लिए यूज करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास इस तरह से करके 4 मेजर टाइप्स के जेंडर्स जो है होते हैं। और इन जेंडर्स को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो कॉमन जेंडर की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि मोस्टली प्रोफेशंस जो होते हैं वो कॉमन जेंडर में ही आते हैं। और न्यूट्रल जेंडर की जब बात करेंगे तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। तो ये जब जब न्यूट्रल जेंडर में ये काउंट हो रही है तो ध्यान रखना है कि नॉन लिविंग थिंग्स न्यूट्रल जेंडर, और प्रोफेशंस, मोस्ट ऑफ प्रोफेशंस काउंट इन दी आपके कॉमन जेंडर। तो इस तरीके से हम लोग जेंडर्स को जो है यहाँ पर अ, पढ़ सकते हैं और उनको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जेंडर्स पर बेस्ड जो है ये एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो रही है। तो इस एक्सरसाइज को हम लोग कल सॉल्व करेंगे, बिकॉज आज के लिए हमारा लेक्चर जो है इनफ हो गया है। आज का लेक्चर हम यही रैप अप करेंगे और कल से हम लोग क्या करेंगे, अपना इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद में हम लोग अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर आर्टिकल्स को। तो इस एक्सरसाइज में देख लेते हैं कि क्या है। अ फेमस साइंटिस्ट, यहाँ पे हम लोग पिक आउट द 4 जेंडर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड नेम देम। तो सिंपल छोटी सी एक्सरसाइज है, हम लोग चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 4 जेंडर्स को पिक करना है। तो 4 जेंडर्स को हम पिक कैसे करेंगे, जैसे कि साइंटिस्ट, ये आपका कैसा हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। ठीक है, ट्रेडर, कॉमन जेंडर। ऑन अ शिप, शिप कैसा हो गया आपका न्यूट्रल जेंडर। लुक नॉर्मल, हेयर एस,
हेयर इज कैसा हो गया आपका फीमेल जेंडर, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपका फेमिनाइन जेंडर। इस तरीके से आप इनको लिख लेना। होस्टेस कैसा हो गया फेमिनाइन जेंडर हो गया। बैरन्स विजिट, शी टुक आउट हर बेस्ट क्रॉकरी, क्रॉकरी कटलरी ये सब कैसे हो गए आपके कॉमन जेंडर हो गए, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर, शी वांटेड टू इम्प्रेस एवरी पर्सन एट द बैंक्वेट, बैंक्वेट भी कैसा हो गया हमारा न्यूट्रल जेंडर हो गया, ठीक है। देयर वॉज यंग शेपर्ड, शेपर्ड कैसा है आपका मैस्कुलाइन जेंडर है, ठीक है। और क्या है हमारे पास में डॉग, डॉग मैस्कुलाइन जेंडर हो गया हमारा। शीप कैसा है आपका कॉमन जेंडर हो गया, ठीक है। स्ट्रेइंग टू फार अवे हिज सिस्टर, सिस्टर कैसा है आपका फेमिनाइन जेंडर। फ्लोरिस्ट कैसा हो गया कॉमन जेंडर हो गया। नीस कैसा हो गया आपका कॉमन जेंडर हो गया। फ्लावर्स कैसा हो गया आपका न्यूट्रल जेंडर हो गया। शॉप कैसा हो गया आपका ये आपका कॉमन जेंडर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जेंडर्स को, स्पून्स आपका कैसा हो गया ये आपका न्यूट्रल जेंडर हो गया, ठीक है। सर्वेंट कॉमन जेंडर। हाउस बिगन इन सच अ मास्टर, मास्टर कैसा है आपका मैस्कुलाइन जेंडर। मिस्ट्रेस कैसा है फीमेल जेंडर। बर्ड कैसा है आपका ये कॉमन जेंडर। थीव कैसा है कॉमन जेंडर। तो इस टाइप से जेंडर्स को जो है आप लोग सेपरेट कर सकते हो। एम्परर कैसा है फीमेल आपका मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। टू मीट द पीपल, पीपल कैसा है कॉमन जेंडर। टाउन तो कोई जेंडर मतलब कॉमन जेंडर ही हो जाएगा ये। तो इस टाइप से हम लोग को जेंडर को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे फिल कर देना। तो हम लोग का आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग रैप अप करेंगे। हम लोग कल से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स। तो कल मिलते हैं कल। टिल देन कीप वॉचिंग कीप लर्निंग, बाय बाय।